morning, sir. Good morning. Nucleoid, 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 nucleoid. There is a single circular DNA. There is a single circular DNA. The nucleoid is associated with mesosome. The nucleoid. Sir, first point repeat कीजिएगा please. There is a single circular DNA. There is a single circular DNA. There is a single circular DNA. Single circular DNA. Single circular DNA. Next point में लिखोगे. The nucleoid associated with the mesosome. The nucleoid is associated with the mesosome. Nucleoid is associated with mesosome. Actually, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है, और ना कोई सेल ऑर्गेनेलिस होता है. उसमें न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं. उसमें जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है. दैट इज कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर डीएनए ओनली. ओके, नेक्स्ट वन फ्लैजेला के बारे में लिखो. फ्लैजेला फ्लैजेला में लिखो FLAGELLA. सर फिर से पॉइंट रिपीट कर दीजिए ना. न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड विथ. कितना बार बोले? 4 बार मैंने कहा. 4 बार, 4 times. The nucleoid is associated with mesosome. The nucleoid is associated with mesosome. Six time बोल दिए. The nucleoid is associated with the mesosome. 7th time. Next, flagella के बारे में लिखिए. Flagella, the motile bacterial cell, the motile bacterial cells, the motile bacterial cells are provided with filamentous extension. Filamentous extension. The motile bacterial cell are provided with filamentous extension. Filamentous extension called flagella. The flagella consists of 3 parts. The flagella consists of 3 parts. Number 1 में filaments. Number 2 hook, HOOK, hook. And number 3 basal body, BASAL, basal body. Number 1 filament, number 2 hook, number 3 basal body. The filament is the longest portion. The filament is the longest portion. Filament is the longest portion. It consists of
It consists of flagellin protein. It consists of flagellin protein. Flagellin, Flagellin. Flagellin protein. Flagellin protein. Yes, sir. Complete. The Yes. basal body. The basal body is the most complex part of the flagellum. The basal body is the most complex part of the flagellum. Complex part of the flagellum. So ये flagella के बारे में कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट लिखोगे पिल्ली, PILLI, पिल्ली एंड फिम्बरी. नाम सुने हैं पिल्ली, Yes, sir. PILLI, Yes, sir. पिल्ली एंड फिम्बरी, FIMBRIAE. फिम्बरी का स्पेलिंग FIMBRIAE. पिल्ली एंड फिम्बरी. पिल्ली एंड फिम्बरी. इसमें लिखोगे these are also surface extension of bacterial cell. These are also surface extension of सर फिर से रिपीट bacterial cell. एक बार रिपीट Bacterial cell. Surface extension of bacterial cell. But not take part in motility. But not take part in motility. Pili are elongated. Pili are elongated. Elongated. It forms the conjugation bridge. It forms the conjugation bridge for the transfer of DNA. For the transfer of DNA. Transfer of DNA into the recipient cell. Into the recipient cell. Recipient cell. Actually, पिल्ली का बारे में मैं बता देता हूँ. पिल्ली जनरली सम बैक्टीरिया में पाया जाता है. As you know, बैक्टीरिया में तो मेल और फीमेल का बारे में डेजिग्नेशन है और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ये सब के बारे में पता नहीं है. बट इट इज येट अननोन. बट उसमें क्या होता है ना, पिल्ली क्या होता है ना, दोनों में क्रॉस, दैट मीन्स ब्रिज बनाता है. दोनों बैक्टीरियल सेल का बीच में ब्रिज बनाता है, कंजुगेशन ब्रिज. उसमें से एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरा बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है. दिस इज द टाइप ऑफ अनदर टाइप ऑफ द, दिस इज द कंजुगेशन process of conjugation where the two bacterial cell lie side by side, formation of the conjugation bridge. After that, the transfer of the DNA from one bacterial cell to another cell, which is known as the recipient, another is known as the donor. इस हिसाब से इसका primitive type of the reproduction इसमें होता है. ठीक है. अच्छा, next one. फिम्बरी का बारे में लिखो. फिम्बरी are small bristle like structure. फिम्बरी are small bristle, BRISTLE, bristle like structure. Fimbri are small bristle like structure. They help for the attachment. They help for the attachment of bacterial cell. They help for the attachment of bacterial cell.
बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट, राइबोसोम का बारे में लिखो। राइबोसोम, राइबोसोम का बारे में लिखो। राइबोसोम, ribosome are found attached to the plasma membrane. Ribosomes are found to attach the plasma membrane. Plasma membrane. इसमें बैक्टीरियल सेल में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है? 70S या 80S? सर 70S। 70 sir. Sir, They 70S. are of 70S type. They are of 70S type. Yes, sir. 70S type. Next लिखो, several ribosome become attached. Several ribosome become attached together on the surface of mRNA. Several ribosome become attached together on the surface of mRNA. On the surface of mRNA to form polyribosome. To form polyribosome. Question आता है, what is polyribosome? Polyribosome or polysome. Polyribosome or polysome. A question बहुत बार आता है, what do you mean by polyribosome? Several ribosome whenever attached on the surface of the mRNA which form the polyribosome. तो कभी कभी पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलीराइबोसोम, तो आपको लिखना है पॉलीराइबोसोम ट्रांसलेट द mRNA into protein. Polyribosome translate the mRNA, m small होगा, mRNA into proteins, into protein. अच्छा, ये हो गया आपका पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। फंक्शन भी इसमें लिख दे। इसके बाद इंक्लूजन बॉडीज। नेक्स्ट लिखो, इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी, inclusion bodies. Inclusion body का बारे में लिखो, these are non-membrane bounded structure. These are non-membrane bounded structure. Non-membrane bounded structure freely present in the cytoplasm. क्या रिपीट कर दीजिए? These are non-membrane bounded structure. These are non-membrane bounded structure freely present in the cytoplasm. Freely present in the cytoplasm. Freely present in the cytoplasm in which reserved material are stored. Reserved materials are stored. In which reserved materials are stored. Reserve. In which reserved materials are stored.
एग्जाम्पल में लिखोगे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, phosphate granules, glycogen granules, phosphate granules, glycogen granules. Complete? Yes, sir. Complete. Yes, अच्छा, sir. ठीक ठीक। Yes, इसके sir. बाद यूकैरियोटिक Yes, सेल sir. में मैं आऊंगा यूकैरियोटिक सेल का बारे में। यूकैरियोटिक सेल का बारे में आपको ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। यूकैरियोटिक सेल में एक बार बात बोल देता हूं। इसमें यूकैरियोटिक सेल में जस्ट सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आता है। यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल में, इसमें मैं इतना प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल्स आता है डिटेल्स, बट यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक सेल आर दोस सेल व्हिच हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज होगा, अनदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज इन साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसके बाद जेनेटिक मटेरियल आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी इसमें पाया जाता है। क्रोमोसोम किसी पर्टिकुलर सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स में एक सेल में दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम होता है। ओके, they have a variety of complex locomotory and cytoskeleton structure. Locomotory and cytoskeleton structure इसमें पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो पाया जाता है उसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पहले लिखिए। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन of eukaryotic cell, cell membrane of eukaryotic cell, structure of cell membrane in eukaryotic cell लिखो। structure of cell membrane in eukaryotic cell। इसमें लिखना the cell membrane is composed of bilipid layers। cell membrane is composed of bilipid layers and proteins। Bilipid layers and proteins। Bilipid layers and proteins। Cell membrane also have carbohydrate। Also have carbohydrates। Lipid layer with polar head, lipid layer with polar head towards the outer side, towards the outer side, that is hydrophilic, that is hydrophilic। And the hydrophobic tails, and the hydrophobic tails towards the inner side, towards the inner side। Complete? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Complete. sir. Yes, sir. Complete। अच्छा,
आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर है, इसके बाद मैं जाता हूं फ्लूइड मोजेक मॉडल, जो हमेशा डायग्रामेटिक और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसी का ही पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है। हम लोग जो ऑयल जो है, अगर पानी का ऊपर में डाल देते हैं 1 बाल्टी पानी, तो फ्लोट करता है। क्या रीजन हो सकता है जो फ्लोट करता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Buoyant force. Sir, buoyant force. Sir, difference in density. डेंसिटी हाँ, बताओ और कोई? सर, डेंसिटी कम होता है उसका सर, ऑयल का। नहीं, अभी इसी से रिलेटेड है। इसमें 2 एंड होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड है, एक हाइड्रोफोबिक एंड है। बाइलिपिड लेयर जो है उसमें एक हेड साइड होता है, एक टेल साइड होता है। टेल साइड हाइड्रोफोबिक, दैट इज वाटर को हमेशा रिपेल करता है। वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो ऊपर में आ जाता है, ठीक है, वो पानी का साथ होता है। इसीलिए क्या होता है, वो वाटर का साथ मिक्स अप नहीं होता है, ड्रॉपलेट्स का ऊपर में ही वो होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक जो टेल पार्ट है वो ऊपर में आ जाता है, क्यों ना, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर को रिपेल करता है, इसीलिए वो ऑयल कभी वाटर का साथ मिक्स अप नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जनरली आप लोग बोलते हैं जो ऑयल इज लाइटर देन वाटर, दैट्स व्हाई दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इट इज टोटली रॉन्ग। लिपिड हैज 2 लेयर, बाइलेयर बोलते हैं उसमें। वन इज हाइड्रोफोबिक एंड, अनदर इज हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं वाटर को। आरेख होता है जो फिलिक एंड है अट्रैक्ट करता है, और हाइड्रोफोबिक एंड जो है जिसको टेल पार्ट बोलते हैं वो रिपेल करता है। बट टेल पार्ट क्या होता है, वो वाटर के ऊपर में आ जाता है, दैट इज रिपेल द वाटर, और वाटर का साथ वो मिक्सअप नहीं होता है, इसीलिए सेपरेटली वो फ्लोट करता है। दिस इज द रीजन, ठीक है। समझ में आया है? हेलो? Yes, sir. हाँ, Yes, इसमें Yes, हाँ, जैसे लिपिड का 2 लेयर होता है, बाइलिपिड लेयर होता है, एक टेल पार्ट होता है, एक हेड पार्ट होता है। हेड पार्ट क्या हो जाता है, हेड पार्ट आपका हाइड्रोफिलिक होता है, टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। लेकिन जब वो फ्लोट करता है, वो उसका जो टेल पार्ट है वो वाटर का साथ रिपेलिंग करता है, दैट मीन्स उसको रिपेल कर देता है, उसका साथ मिक्स अप नहीं होता है, इसीलिए वो फ्लोट करते रहता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखो। membrane proteins are classified. Membrane proteins are classified. Membrane proteins are classified as integral protein, and peripheral protein. Integral, INTEGRAL, integral and peripheral proteins. Peripheral proteins. Peripheral protein. इसके बाद लिखोगे the most accepted model of plasma membrane, most accepted structure लिखो, most accepted structure of plasma membrane is most accepted structure of the plasma membrane या सेल मेम्ब्रेन लिखो, सेल मेम्ब्रेन is fluid mosaic model. Fluid mosaic model, FLUID, fluid mosaic, MOSAIC, mosaic model, fluid mosaic model. अंडरलाइन करोगे उसको, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसके बाद उसके बारे में डिटेल्स लिखो, ठीक है।
fluid mosaic model of plasma membrane. Fluid mosaic model of plasma membrane fluid mosaic model of plasma membrane was proposed by सिंगर, SINGER, सिंगर, साइंटिस्ट का नाम है सिंगर, SINGER, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, NICOLSON, सिंगर एंड निकोलसन, निकोलसन, NICOLSON, सिंगर एंड निकोलसन। ब्रैकेट में लिखोगे 1972। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस साइंटिस्ट ने ये किया है, प्रपोज किया है? सिंगर Nicholson. Singer and Nicholson. Nicholson 1972 ये 1972 क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ सुटेबल डायग्राम। डायग्राम तो बहुत क्रिटिकल है, वो एनसीईआरटी बुक में है। एनसीईआरटी का बुक का जो डायग्राम है वो थोड़ा क्रिटिकल भी है, लेकिन हो सकता है मैं उसको नेक्स्ट डे हम बोर्ड यूज करेंगे, उसको डायग्राम को बना देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल the membrane is quasi-fluid, QUASI, quasi-fluid nature। Sir, spelling क्या है sir? QUI? हाँ, QUASI, quasi-fluid। Quasi-fluid means semi-fluid। Quasi-fluid nature of lipid the membrane also important for the membrane is also important for certain functions like cell growth, endocytosis, and cell division। Sir, एक बार रिपीट कर देना sir. Cell growth उसके बाद cell growth, endocytosis। एंडोसाइटोसिस मीनिंग क्या होता है? हेलो, एंडोसाइटोसिस का मीनिंग क्या है? एंट्री ऑफ द engulfing. अमीबा अगर एंट्री होता है फूड मटेरियल्स तो इसको एंडोसाइटोसिस बोलता है, और रिलीजिंग होता है तो एक्सोसाइटोसिस। sir ठीक है? invagination। हाँ, नहीं, इन्वेजिनेशन दूसरा बात है। एंट्री ऑफ द फूड मटेरियल टू द सेल, दिस इज नोन एज द एंडोसाइटोसिस, और रिलीज हो जाता है तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेल डिवीजन हो गया। नेक्स्ट, one important property of the membrane
is semi-permeability. Is semi-permeability. 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 The membrane allows certain molecules. The membrane allows certain molecules to across the membrane. To across the membrane. अच्छा, अकॉर्डिंग टू द परमिएबिलिटी, ये इतना ही कंप्लीट है। जब फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल के बारे में लिखोगे पहले से लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है, जहां से शुरू किए हो। द स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन ये है जो सेल मेम्ब्रेन का पहले से जो लिखे हो, बीच में आगे जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल लिखे हो उसको नहीं करके पहले से शुरुआत कर दीजिएगा, ठीक है। हेलो, ओके सर। हेलो, Yes, sir. सर ठीक है। Yes, sir. हाँ, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल में 4 पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 3-4 लाइन, ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ऊपर में जो मैंने लिखा है उसका बारे में, वो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल का अंडर में ही है। इसीलिए जब भी फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल का अंडर में लिखोगे तो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल्स जब स्ट्रक्चर शुरू कर पहले से ऊपर में लिखोगे, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल लिख के डिटेल्स शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। कंटेंट्स ज्यादा हो जाएगा उसमें। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द परमिएबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन आप क्लास 9 या 10 में तो पढ़े होंगे जरूर। एक परमिएबिलिटी का हिसाब से सेल मेम्ब्रेन 3 टाइप्स है। एक इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड परमिएबल, 3 टाइप है ना। हेलो, यस सर। यस सर। याद नहीं है? सेमी परमिएबल मीन्स some substances are allowed to enter or across the membrane, some are not allowed to across the membrane, ठीक है। ये सेमी परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबल बहुत सारा मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, उसके बाद एक फुल्ली परमिएबल, बहुत सारा मटेरियल अलाउ हो सकता है उसमें, परमिएबल। और एक है इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मीन्स अलाउ नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द solubility, the liquids are 3 types: hypotonic, hypertonic, isotonic। ये पता है? यस सर, पढ़े हैं यस सर। सर। Yes, sir. हाँ, क्लास 9 में पढ़े होंगे। हाँ, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, Yes, sir. आइसोटोनिक। हमको कोई बताओ तो हाइपरटोनिक क्या होता है? यस सर। बताओ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? सर हाइपरटोनिक में श्रिंक हो जाता है और हाइपो में स्वेल कर जाता है और आइसो में नो चेंज होता है। स्वेल करेगा, ये तो कारण क्या है? एक्चुअली क्या होता है हाइपरटोनिक Concentration सॉल्यूशन? of salt. Osmosis. हाइपो में सर वो किसी सुनो, किसी एक सेल, हाँ, सेल को उसका अंदर में जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन, जिस लिक्विड में मैं डालूंगा रखेंगे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इसको हाइपर, हाइपर मींस ज्यादा, मतलब सेल का अंदर में जो लिक्विड है उससे ज्यादा जिस सॉल्यूशन में उसको डाला जाएगा, दिस इज नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन व्हिच हैव द मोर concentration as compared to the cell sap, this is known as the hypertonic solution, ठीक है। और हाइपोटोनिक मींस किसी एक सेल से कम अगर किसी लिक्विड का ये है कंसंट्रेशन है उसको हाइपोटोनिक, और आइसोटोनिक दोनों बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, सेल क्यों सिंकेज करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग किशमिश को मान के चलिए, किशमिश को अगर पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? फूल जाएगा। क्यों ना? पानी का कंसंट्रेशन और किशमिश का अंदर में जो लिक्विड है उस कंसंट्रेशन से पानी का कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए क्या होता है? पानी अब्जॉर्ब कर लेता है वो।
अगर वही ग्रेप्स को मीन्स अंगूर को अगर स्वीट मतलब शुगर सॉल्यूशन में डालिएगा, आप देखिएगा एक बार टेस्ट करके, जो ग्रेप्स क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिंकेज हो जाएगा। ग्रेप्स का अंदर में जो कंसंट्रेशन है लिक्विड का, उसका कंसंट्रेशन से ज्यादा जो है शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। इसीलिए उसको अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा ना, श्रिंकेज हो जाता है और वो ग्रेप्स किशमिश बन जाता है। ठीक है, प्योरली किशमिश नहीं बनेगा लेकिन श्रिंकेज हो जाएगा। ठीक है, और आइसोटोनिक में दोनों सॉल्यूशन, उसमें कोई चेंज नहीं होगा दोनों सॉल्यूशन में। इसी कारण से एक जनरल फेनोमेनन है, जनरल फेनोमेनन इन दैट सेंस, मान लीजिए किसी स्वेलिंग, दांत में दर्द होता है तो उस समय नमक पानी डाल दिया जाता है, गार्गिल किया जाता है। गला में दर्द होता है तो नमक पानी की हायर कंसंट्रेशन, उसमें कंसंट्रेशन दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। इसीलिए क्या, स्वेलिंग कम हो जाएगा। अगर पैर में कहीं स्वेलिंग होता है, मोच होता है, सुनो, पैर में स्वेलिंग और फूल जाता है तो क्या होता है, हम लोग नमक पानी गर्म करके उसमें डुबा के रखते हैं पैर को। हाँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, साइंटिफिक रीजन है, ऐसा थोड़ी होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसी कारण से स्वेलिंग कम हो जाता है और पेन रिलीफ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके नेक्स्ट दिन मैं बोर्ड यूज करूंगा, डायग्राम आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद जो है आपका बाकी फ्लूइड मोजेक मॉडल का जो है डायग्राम, इसका डायग्राम, ये सब चीज कुछ डायग्रामेटिक जो है, जो इंपॉर्टेंट है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एग्जामिनेशन में आता है और क्लोरोप्लास्ट आता है, डायग्रामेटिक, उसके बारे में डिटेल्स लिखाऊंगी भी और डायग्रामेटिक इसमें होगा। बाकी जब आप लोग अपना कुछ पढ़ना शुरू करो, जैसे गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब अपने से कुछ पढ़ना पड़ेगा, उतना पॉसिबल नहीं है। 9 का चीज फिर से रिपीट करे, थोड़ा सा आप लोग अपने से पढ़ो। मेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब डिस्कस होगा, सेल मेम्ब्रेन ये सब होगा। बाकी जो छोटा छोटा चीज है, जैसे मान लीजिए आपका लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, उसके बाद आपका राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सिलिया फ्लैजेला, ये सब अपने से कुछ पढ़ना है। कुछ तो अपने से पढ़ना ही पड़ेगा इसमें, क्यों ना, इतना संभव नहीं है। और टाइम ड्यूरेशन, सितंबर में एग्जामिनेशन होगा हाफ ईयरली, सितंबर 10 तारीख का बाद ही मोस्ट प्रोबेबली ये होगा, इसीलिए टाइम भी ज्यादा नहीं है। हमेशा 11 क्लास का सिलेबस में प्रॉब्लम होता है ईच एंड एवरी ईयर टू फिनिश द सिलेबस। ओके, तो 10-15 तारीख तक अगर होगा एग्जामिनेशन सितंबर, तो हमको और 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर के बारे में भी ध्यान देना है ना। एक सेल साइकिल है और अरे क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। तो ये 2 चैप्टर के बारे में ध्यान देना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये सब अपने से पढ़ोगे, लेकिन जो एग्जामिनेशन में आता है इंपॉर्टेंट चीज, उसको मैं इस चैप्टर में डिस्कस कर देता हूँ। जैसे फ्लूइड मोजेक मॉडल आता है, माइटोकॉन्ड्रिया का बारे में आता है और क्लोरोप्लास्ट का बारे में आता है, ये सब चीज एग्जामिनेशन में आता है, उसको मैं डिस्कस। और उसके बाद क्रोमाटिड्स का बारे में आता है, सेंट्रोजोम का बारे में आता है, ये सब